Hello, children. You are welcome to the digital classes of Christ Church Convent Higher Secondary School, Gatawara. I am Amit Toshniwal, your accounts teacher. This video is for class 11th, subject accounts, chapter number 7, Ledger, part 1. Ledger in Hindi we say Khata Bahi, and Khata means accounts in English. The meaning, okay? So when transactions are recorded in a journal, they are not classified, they are written in a scattered way. If we want to know the information regarding a particular transaction, then we have to look into it on different pages, and it's a difficult task, and moreover we cannot find out any conclusions out of it. Suppose we want to come to a conclusion, so it is not possible through journal or by subsidiary books. For this, classification of all the transactions are done under different heads by using accounting rules, and they are classified in 3 accounts: personal accounts, real account, and nominal accounts. And the transactions related to one particular account is written under one account giving its name. And this all, when transactions are classified and written under that particular head or particular account, so this work is called ledgering. It means ledgering work is the classification of transactions and writing them individually under a particular head, particular name, so that we can find out the exact financial position of the business. Okay? So different books are there, and to summarize them, to come to at a conclusion, we need to find out their balances, and to find out their balances we need to classify them, and this work is done in ledger. We have been studying from the beginning, when we started, that every transaction has got 2 aspects. Dual aspect is there, and it affects on 2 sides and on the 2 accounts at least. 2 sides, that those 2 sides are debit and credit. It means every debit has a corresponding credit. And see, 2 sides, it is confirmed, and you know, left hand side is debit side and right hand side is credit side. But at least 2 account means a transaction may affect more than 2 accounts also, in case for which we used to do compound entry. You have studied, means you have learnt, you were taught compound entries. When 2 or more than 2 accounts either debited or credited, or transactions take place on the same date, so for them we make compound entries. So in such conditions, I mean to say, every transaction affects 2 accounts at least, and those 2 accounts are written on the opposite side while ledgering is done. And how it is done, we'll see the procedure later. But you just recollect this, recall this, it happens. Okay? This is a principal book of business, ledger, and accounts are made using those 3 heads: personal account, real account, and nominal account. So all the
information related to that particular can be received at a particular place, one place only. And after leisuring, the business proceeds to the final stage of making final accounts. Okay, so what are the features? This is a main or principal book. Second, all types of accounts are opened in their name according to their nature. नेचर कौन सा होता है? पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल, है ना. एवरी अकाउंट हैज़ टू एस्पेक्ट्स, डेबिट एंड क्रेडिट. फोर्थ, एंट्रीज इन लेजर आर मेड फ्रॉम द जर्नल. मतलब जर्नल वर्क्स एज अ बेसिक बुक फॉर लेजर. Beginning of the ledger, there is an index which states page number of each account. Then according to double entries accounting, any one account is debited and the other account is credited. So simple. Before posting into ledger, it's necessary for entries made in the journal are first divided according to their category and classified. तो पहले उनको डिवाइड कर लेंगे, कौन से पर्सनल है, कौन से रियल है और कौन से नॉमिनल है. Accounting in the ledger can also be done through computers, as in banks account of every person is made in computer. तो उसके लिए टैली वगैरह का एक कोर्स होता है, आप लोग यदि करना चाहें तो अभी कर सकते हैं. 11th में ही टैली, बेसिक टैली होता है, 3 months कोर्स, वो भी आप कर सकते हैं, जिसमें आपको अकाउंटिंग इन कंप्यूटर सिखाई जाएगी. ठीक है. एंड आफ्टर दिस ऑल द बैलेंसेज आर checked for their arithmetical accuracy, and for which we make trial balance and proceed to the final accounts ultimately. Now see the difference between journal and ledger. First, basis of accounting. In general, entry in this book is made directly as it happens, or on the basis of memorandum book or vouchers, waste book और rough book. एंड लेजर में एंट्री होती है जर्नल के थ्रू या सब्सिडायरी बुक के थ्रू. ठीक. सेकंड, टाइप ऑफ रिकॉर्ड. इन जर्नल, रिकॉर्ड इज केप्ट इन डिस्क्रिप्टिव मैनर, एंड वेयर इन लेजर इट इज रिटन इन समराइज्ड मैनर. थर्ड पॉइंट, मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग. In journal we write transactions date wise, and here we write account wise in ledger. Utility. Journal का जो पर्पस है, पर्पस ऑफ जर्नल इज़ टू सपोर्ट मेमोरी. आपकी बुक में गलत लिखा है, ठीक कर लेंगे. वहाँ लिखा है द पर्पस ऑफ लेजर, तो उसको कर लीजिए द पर्पस ऑफ जर्नल. Purpose of journal is to support memory. It used to record transactions as soon as it is occurred. And ledger is helpful in finding out the final result of the business, यानी कि conclusion part. Folio. तो जर्नल में रहेगा लेजर का फोलियो नंबर और लेजर में रहेगा जर्नल का फोलियो नंबर. ऑपोजिट होता है, क्योंकि जर्नल जब तुम बनाते हो तो उसमें क्या लिखते हो तुम? LF, लेजर फोलियो, जो बीच का थर्ड कॉलम होता है. और जब लेजर बनाते हो तो थर्ड कॉलम होता है JF, जर्नल फोलियो. ठीक है. परमानेंसी. जर्नल एक टेम्परेरी रिकॉर्ड है, जबकि लेजर परमानेंट रिकॉर्ड है. टाइप ऑफ बुक. जर्नल को हम बोलते हैं बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, और लेजर को बोलते हैं बुक ऑफ फाइनल एंट्री. तो जर्नल इज़ अ प्रिंसिपल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स एक्चुअली. फॉर्मेट. जर्नल इसमें क्या होता है? 1 column फॉर पार्टिकुलर्स एंड 2 columns फॉर अमाउंट्स. 1 column इज़ फॉर डेट, एंड हेयर वी हैव 2 columns for particulars and amount for debit and credit. So we'll see the format, its format after in this video only. I'll show you. So the format is as same as simple cash book, है ना. We'll come on to that point too.
अब व्हाट आर द इम्पोर्टेंस और एडवांटेजेस और यूटिलिटी ऑफ लेजर। लेजर क्यों बनाना चाहिए, क्या महत्व है इसका, क्या लाभ होते हैं इससे, क्या उपयोगिता सिद्ध होती है। तो पहला है इंफॉर्मेशन अबाउट एन अकाउंट एट वन प्लेस। दूसरा है हमको हमारे कितने डेटर्स हैं बिज़नेस के, कितने क्रेडिटर्स हैं उसका पता चलता है, कितने लोगों से पैसा लेना है, कितने लोगों को देना है। फिर अर्थमेटिकल एक्यूरेसी। तो अकाउंटिंग इक्वेशन में आपने पहला फार्मूला पढ़ा था, टोटल मतलब 4th या 5th नंबर का फार्मूला है अकाउंटिंग इक्वेशन में, टोटल डेबिट बैलेंसेस इज इक्वल टू टोटल क्रेडिट बैलेंसेस। ये इक्वेशन, उसका नाम ही है इक्वेशन, इट मस्ट बी इक्वल। टोटल डेबिट टोटल्स इज इक्वल टू टोटल क्रेडिट टोटल्स, असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, एंड लाइकवाइज टोटल डेबिट बैलेंसेस इज इक्वल टू टोटल क्रेडिट बैलेंसेस। ठीक है, तो अर्थमेटिकल टेस्ट के लिए ये चला जाता है। नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस पता चलता है, फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है हमें। असेट्स का नॉलेज होता है, कितनी असेट्स बिजनेस में है, जब असेट्स का पता चल रहा है तो लायबिलिटी का भी चलेगा, है ना। तो असेट्स का भी और लायबिलिटीज़ का भी सारी इन्फॉर्मेशन हमको क्विकली मिल जाती हैं और हम पता कर सकते हैं कि कितना इनकम हो रहा है, रेवेन्यू इनकम कितना है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स कितने हैं। सबसे बड़ी बात, इट वर्क्स एज एन एविडेंस इन कोर्ट। यदि कोई झगड़ा हो जाए लेन देन का, ट्रांजैक्शन का, तो कोर्ट में उसको आप प्रूफ के बतौर प्रस्तुत कर सकते हो। प्रोवाइडेड मीन्स इट इज़ सर्टिफाइड एंड ऑडिटेड, है ना, ऑडिटेड होना चाहिए तभी वो प्रूफ होगा। ठीक है, अब आप देखिए फॉर्मेट ऑफ रूलिंग ऑफ लेजर। इसमें आपके पास 2 साइड रहेंगे, डेबिट और क्रेडिट। तो डेबिट साइड में आपके पास 4 कॉलम होंगे, डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल, फोलियो एंड अमाउंट, एंड यही 4 कॉलम रहेंगे क्रेडिट साइड में। ठीक है, तो इसका फॉर्मेट कैसा रहेगा देखा आपको। सबसे ऊपर रहता है नेम ऑफ द अकाउंट, लेफ्ट हैंड साइड में डेबिट साइड होता है, 4 कॉलम दिख रहे हैं, डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल, फोलियो एंड अमाउंट, और क्रेडिट साइड में भी 4 कॉलम है वही। ठीक है, अब फॉइलिंग का मीनिंग क्या है हमने आपको बताया था। JF जर्नल फोलियो में जर्नल का वो पेज नंबर लिखा जाता है जहाँ पर ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हुआ है, किस पेज नंबर पर जर्नल में ये ट्रांजैक्शन मिलेगा उसमें लिखा जाता है ये। और यही हम करते हैं जर्नल में, LF कि लेजर के किस पन्ने पर ये वाला ट्रांजैक्शन पोस्ट किया गया है। तो ये फॉइलिंग का इम्पोर्टेंस है इसमें। अब पोस्टिंग का मतलब होता है कि जो ट्रांजैक्शंस हैं उनको लेजर में लिखना। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पोस्टिंग। ठीक है, सबसे पहले रिकॉर्डिंग ऑन द रिलेटेड साइड, क्योंकि रिलेटेड साइड का मतलब क्या होता है, ड्यूअल एस्पेक्ट होता है, डेबिट एंड क्रेडिट। तो इफ़ एनी अकाउंट इज़ मेड, जो अकाउंट बनाया जा रहा है, यदि वो डेबिट हो रहा है तो उसके डेबिट साइड में ही जो दूसरी एंट्री क्रेडिट की हुई है वो लिखी जाएगी। ऑपोजिट एंट्री होती है, ये ध्यान रखना, सबसे बड़ा पंच पॉइंट है इसका। यदि ये बात समझ में आ गई मतलब लेजर ख़त्म हो गया आपका। लेजर, पूरा लेजर इसी में समाया हुआ है, गागर में सागर है ये लाइन। कौन सी, कि तुम जो अकाउंट बना रहे हो पहले ये देखो वो अकाउंट डेबिट हुआ या क्रेडिट। यदि वो डेबिट हुआ है तो उसके डेबिट साइड में वो एंट्री लिखी जाएगी जिसके थ्रू वो अकाउंट डेबिट हुआ है, मतलब उसके क्रेडिट में कौन सा अकाउंट हुआ है वो उसमें लिखा जाएगा। ठीक है, यूज़ ऑफ टू एंड बाय, जब हम डेबिट साइड में लिखेंगे तो अकाउंट के आगे टू लिखेंगे और क्रेडिट साइड में लिखेंगे तो अकाउंट के आगे बाय लिखेंगे। फॉइलिंग यानी कि जर्नल का पेज नंबर। ठीक है, अब ये क्रॉस चेकिंग में काम आता है। और डेट और अमाउंट आपको भरना है, वो आपको क्वेश्चन में दी रहेगी कि किस डेट को का ट्रांजैक्शन है और उसका अमाउंट कितना है। ठीक, अब आ जाएं, आप एक क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, देखिए आपकी स्क्रीन पर, ये एक एग्जाम्पल है। सबसे पहले आपने एक जर्नल एंट्री की है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो 2 अकाउंट्स आर अफेक्टेड, फर्स्ट कैश अकाउंट, सेकंड कैपिटल अकाउंट।
अब जब हम कैश अकाउंट बनाएंगे तो कैश अकाउंट क्या हुआ था, डेबिट हुआ है। जर्नल एंट्री में कैश अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट। तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड में हम लिखेंगे टू कैपिटल, लिखा है देखो, है ना। और जब कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा था जर्नल एंट्री में, क्रेडिट। तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में हम लिखेंगे बाय कैश। ये ऑपोजिट एंट्री होती है। इसको फिर से एक बार मैं कह रहा हूँ कि जो एंट्री होती है इट इज़ डन, मतलब ऑपोजिट एंट्री इज मेड। ठीक है, रिमेंबर दिस and you go through illustration number 2 and 3, so you will come to know more, and for the rest we'll continue in our post videos. So keep watching and keep learning. Thank you.